ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದು ಬೇರೆ, ಅದು ಕಳೆದಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ಸಾಧನೆನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಾಹಸನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ ನಮಗಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಜಿ ಅಬ್ಬಾಸು ಅವರ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಅವರ ಅವರು ತಗೊಂಡಂಥ ಆಶ್ವಾಸನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ದಿವಸನೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕ, ಅದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರಿಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಪ್ತಕದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಕ 99 ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಈ ನನ್ನ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು, 10 ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಶತಾಯುಷಿ 100 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಶತಾಯುಷಿಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು. ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 90 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀರಜ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸತಾರ್ ಮೇಕರ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರದು. ಸತಾರ್ ಮೇಕರ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರೀಗ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹಾಜಿ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಸತಾರ್ ಮೇಕರ್ ಮೀರಜ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೂ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚಾಚಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲಿಂದನೂ ಚಾಚಾ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಚಾಚಾ स्वागत है और सलाम, नमस्कार. बचपन से तुम्हारे साथ हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें हमारे लोगों को भी जानना है, संगीत वालों को जानना है. तो पहला ये बताओ कि आप लोगों का जो घर है, घराना है, मूल का किधर का है? मूल घर जो है घराना मोहद्दीन साहब घराने से. मोहद्दीन साहब? हाँ. और फरीद साहब 2 भाई हैं. और हम मोहद्दीन साहब घराने के हम लोग हैं. तो हमारे पिताजी चाचा ये काम करते थे. उन्होंने आए यहाँ मेरठ को, तो वो टाइम में सितार तंबोरे काम तो नहीं था. तो सांगली संस्थान वाले उन्हें पाकिस्तान के खासा बातें उनका गाना रखे नवरात्र में, और वो आए, तंबोरा खराब हो. बाद में क्या करना, तो उन्होंने सरकार बोले मैं सांगली में बनाता हूँ. सांगली में सबको पूछे, कोई नहीं बनाता. बाद में मेरा जाए हम पटवर्धन सरकार के पास. पटवर्धन सरकार ने बोले कि मेरे कने 2 आदमी आए, मोहद्दीन साहब और आमीन साहब, ये 2 जने हैं, इनको पूछेंगे. बुलाए. उन्होंने कहा हम तंबोरा नाम आप भी सुन रहे हो, देखे बगैर मैं कुछ बोल सकता नहीं. फिर ला के बताए तो खासा साहब ने देखा है बीच के दोनों तार जो है
अलग अलग बजते थे, दोनों एक जान बजने होना, ये बना के जो देता हूँ बोले। फिर बाद में पेपर कागज वो टाइम ज़माने में नहीं थे, तो उन्हें काचा कूट के पेपर कागज को गंजी लगा के पेपर तैयार करे, सब करे, जवार निकाले, मिलाने लगे, तार टूटने के बाद में सरकार करने लगे तार आपके पास कहाँ है, मैं बनाता हूँ। कि उन्होंने 10-12 तारा बनाए पोलत की काड़ी लेके, और वो टूटेली तार एक हाथी तो वो भी निकाला, आपले दोनों तारा लगाए और वो लगा के मिलाए, बराबर बज रहा है। बाद में उनको समझाए, खासा आए, सरकार आए, ठीक है, अरे भाई कर लगे मेरा पहले से तन पर अच्छा बज रहा है, अभी 2 दिन प्रोग्राम करूँगा और तू मेरे पास प्रोग्राम को आ, ठीक है बोले। फिर बाद सब सरकार ने क्या करने लगे, उसका मेजरमेंट लो और आपने वर्कशॉप में तंबूरा बनाने का चालू करो, ठीक है। इस तरह से चालू हुआ है काम। हाँ, पटवर्धन सरकार पासी, हाँ हाँ। तो उन्होंने कुंभार को बोला को हंडी बनाए कद्दू की सब्जी, और पेपर चिटका को कद्दू तैयार करे, तंबूर तैयार करे, चले बहुत दिन। बाद में हमारा मुहर्रम में धोने हो जाते हैं ना, नबी साहब, आबा साहब, मेरे पिताजी, ये सब जने मुहर्रम का धोने हो गए, नदी को धोने लगे तो जंगल में कद्दू पड़े थी। क्या है कद्दू को, रोज जाके देखे, कहे इसके तंबूरे अच्छे होते हैं, लाए बोला करो तंबूरे, सरकार को बताए, सरकार कहे बीज निकालो अपने जंगल में लगाओ, तंबूरे बनाने चालू करो। तब से बिजनेस जो चालू हुआ, नबी साहब, हुसैन साहब, आबा साहब, चालू हुआ। अभी मीरज को तुम्हें जो आए, कहाँ से आए, मूल जगह कौन सा था? मूल जगह हमारा बीजापुर, कर्नाटक। मीरज को आए क्यों, तो दरगाह जो है बांध को तैयार हुआ, ख्वाजा मीरा शमना की दरगाह। हाँ, तो उसको कलश बटाने को कोई न था, दरगाह का कलश। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आलमगीर बादशाह ने हमारे 3 फैमिली को लेके आया मीरज को, बाकी कौन से फैमिली कैसे हुआ नहीं, कि हमारी जो फैमिली थी मुदीन साहब, उन्होंने कर बना के बटाए करे सब हुआ, फिर जमीन दे इनाम, रहने को जगह दी। अच्छा, ये जमीन मिली, इनाम में मिली। हाँ। 7 तार की सितार, 7 तार में क्या था, मध्यम, 2 जोड़, पंचम, चिकर। तो खर्च पंचम की सितार रहमत खान साहब के टाइम से बनी है यहाँ। हमारे बचपन में, अब जैसे तुम्हें 3 साल की उम्र में माँ के पास से चाचा लेके गए, वह फिर तो चाचा के पास ही परवरिश हुई तुम्हें? हाँ, हमारे मेरे चाचा मतलब नबी साहब। नबी साहब, और नबी साहब के पास अभी आखिरी तक भी मेरे को 2 बच्चे हुए तक। तो तुम काम कब से सीखे ये? 11 साल की उम्र करनी चाहिए, ओह, हमको स्कूल नहीं। हाँ 11 साल की उम्र में उन्हें हाथ तलार काम को लिए नबी साहब ने, हाँ। और मेरे को काम बताने के, मैं वैसा करते जाने का। फिर तंबूर तैयार हुए, बॉम्बे को जाने का, आर्टिस्ट लोगों को देने को, साथ मिले हुए जाने के, तंबूर देने के, सब ऐसा करते करते तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने जूड़ी के ऑर्डर दी, वो तो नबी साहब ने मेरे को लेके। तो अभी तुम्हारे जो साज है, सितार होंदे या बीन होंदे, या हमारे इंडिया में किन किन के पास हो सकते हैं? तुम्हें जो दिए तंबूरे, सितार, वो कौन से बड़े आर्टिस्ट हैं उसके अंदर? मैं रहमत का खान साहब के फैमिली में तो सितार दूँ, अलाउद्दीन खान साहब के फैमिली दूँ, रविशंकर को सितार दूँ। बाद में तंबूर जो है, तो बम्बई में सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मंसूर अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, देवदार मास्टर, ये लोग को तंबूर में रहे।
और ऐसे कर्नाटक में हमारे गंगूबाई हंगल मेरी जुड़िया है, भीमसेन जोशी मेरी जुड़िया है, और गौरव जाते हैं संगमेश्वर गुरु वो जुड़ी मेरी है। सबको ऐसे लोगों को तंबोर दूँ वो ज़माने में। वो जमान। अभी अभी तुम्हारे घर में कितने भाई बंदा ये काम करते हैं, क्या करते हैं? मेरे 8 भाई, हाँ 8 में के 6 भाई के बच्चे, हाँ पोतरांदा, हाँ ये सब काम करते। हाँ सितार। हाँ, अभी मेरा पोतरा इंजीनियर है, सर्विस नौकरी नहीं, ये इस काम करता है। तुम्हारे घर में अभी सलीम भाई करते थे, है। गौस भाई कर रहे हैं। तो ये जो तुम्हारे घराने में भी जो चल रहा है, इसमें बेहतरीन काम है मेरे ख्याल से सितार का काम, मेरे ख्याल से सितार और तंबूरे का काम बेहतरीन काम मीरज में हुआ है। क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे वालिद सारंगी का भी काम लेको आते थे। हाँ, ये हमारे घराने का ये फैमिली है, कागज। फैमिली ट्री। ಓಹೋ ಇದು ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಬೆಳೆದದ ये इतने लोग। हाँ, वाह। अच्छा, इसमें अभी एक जिक्र करे कि अब्दुल करीम खान साहब यहाँ मेरज को आए थे, ये जिक्र हुआ। तो अब्दुल करीम खान साहब जब थे या आए थे उस टाइम पे तुम्हारे वालिद या तुम्हारे चाचा उन्होंने तो खैर बड़े थे। हाँ। तुम्हारी उम्र क्या रहेंगी वो टाइम? मेरी उम्र वो टाइम को साधारण 9 से 10 साल के थी। अच्छा, 9-10 साल की उम्र में तुम्हें खान साहब को देखें? हाँ, खान साहब की पूरी फैमिली को देखा फिर? मैं पूरी फैमिली को देखा हूँ। हाँ, जैसे सूरज और फैमिली देख को खान साहब मुझे ले को जाते थे घर को, बंगले को। उनको क्या थी, खान साहब को पाठ के 4 बजे जुमेरात दिन दरगाह जाने वास्ते आने की, हमारे चाचा को उठाने की, चलो दरगाह। फिर चाचा उठो निकले, अरे कल अम्मा साहब उठा, उन्हें उन्हें कल मेरे हाथ तला लेके जाने की। क्या बात। अब्दुल करीम खान साहब, वाह, ये बहुत बड़ी कमाल की बात है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣ ಘರಾಣದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅವರು 2ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್. ಅವರು 1ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಮಂದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಮೊದಲೇ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹೀದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರು. ಅವರು ಲಾಹೋರ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆವಾಗ ಲಾಹೋರ್ ಇದು ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಲಾಹೋರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ವಹೀದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಅವರು ಕಿರಾಣ ಘರಾನ ಗಾಯಕಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅವರಿಂದ. बट ಅದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ करीम खान साहब कालಕ್ಕೆ. अलग अलग घराने के लोगों के साथ में अलग अलग घराने के लोगों को अलग अलग क्या भी तंबूरे का स्टाइल क्या भी बदलता है क्या? बदलता है, कुछ फ़र्क आता है? फर्क आता है। उनका अलग होता है स्टाइल, हमारा अलग होता है घराने का। हाँ, नहीं मतलब गायकी तो हो गई तुम्हारे, तो जो इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हें बना। इंस्ट्रूमेंट में जो अलग फर्क होता है। अच्छा। अभी देखो, इनको काली चार का तंबोरा होना है, तो काली चार के तंबोरे को कद्दू का माप वापरना, उसका डंडी का मेजरमेंट कितना रखना, आड़ और ब्रिज पर्सिल कितनी लंबा रखना, वो मालूम तो उन्हें होना। वो नहीं, कद्दू लेने का, तंबोरा बनाने का, डंडी का माप नहीं, 3 फुट है, 3 फुट 2 इंच है, 3 इंच है, बटाए तारा लगा के दी। पर वो काली चार वो बजेगा कि नहीं, ये शंका। तो ये मतलब ये उसके अंदर की बारीकी हो गई। हाँ, बारीक काम है। बारीक। तो वो तंबोरा हम जो बनाते हैं, काली चार का तंबोरा बोले 3.25 से 4 फुट का कद्दू, इससे बड़ा नहीं, तो घेरा घेरा। और डंडी 3 फुट 1 इंच लंबा नहीं, उसके अंदर छुलावट लकड़ी की बराबर करके साज बनाने का। तो वो मेजरमेंट जो करते हैं, काली 4 को बजा सकते, काली 5 को बजा सकते, वैसा वो साज नहीं बजता। अच्छा अच्छा अच्छा।
मतलब वो उसका मेजरमेंट इम्पोर्टेंट है, है। बहुत ज़रूरी है। अभी काली एक को तंबोरा मांगते हैं। काली एक का तंबोरा कौन सा रखता है? 4.5 फुट का कद्दू। इतना बड़ा कद्दू आता हाँ है ना। अभी तुम्हारा क्या है? चूड़ी वो साइज है। तो वो 4.5 का कद्दू, डंडी 3 फुट 4 इंच लंबान में, डंडी की। 4.25 इंच चौड़ी डंडी। वो हिसाब से तंबोरा बनाया जाता है। तो अब ये लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करते हैं? अभी पहले जो करते थे हम, नबी साहब, आबा साहब, हुसैन साहब, वो टाइम में साग की लकड़ी आती, सागवान। सागवान। अभी क्या है, सागवान बहुत महंगा होने से तून की लकड़ी करके तून है। वो वापर रहे हैं अभी। पण वो तून की लकड़ी ऐसी है कि कटाई बरोबर काम करने का नहीं। कटाई बरोबर सितार करे, तंबर करे, बेंड आता है। उसे 1 साल तक सूखने और रखने का कटरा को, और बाद में काम को ले। सीजन करके। हाँ। तो ये अभी तून की लकड़ी का और साग की लकड़ी का, सागवान की लकड़ी का साउंड में फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है। कौन सा अच्छा बोलता है? अभी साउंड में बोले तो सागवान जो साउंड में बजता है, वैसा तून की लकड़ी बजती नहीं। अच्छा, जो जवारी जो बनाते हैं तुम्हें, तंबूरा तो बन जाता है, लेकिन उसके बाद में जो उसकी जवारी का काम है, या साल 2 साल में एक बार या साल में एक बार उसकी जवारी निकालते हैं, तो जवारी निकालने के बाद तंबूरी में क्या सुर जो लगाते हैं तुम्हें, क्या सुन के लगाते हो? हाँ, जैसे तंबूरा जो बना है, हाँ। पंचम लगाए तो हमें कुछ सोचते हैं, फिर खर्च लगाए तो गंधार होना। नहीं, अभी क्या है, उसका तार का मेजरमेंट है। प्रत्येक सुर का तार मेजरमेंट का अलग अलग आता है। वो हिसाब से तार लगाना पड़ता है। खर्च का काली एक का तंबा बोले 21 नंबर। हाँ। हाँ। जोड़ का तार 26 नंबर। अच्छा। हाँ पंचम 24 नंबर। हाँ हाँ। तो ये मेजरमेंट है तार के, वो लगाना पड़ता है। अच्छा, वो तार लगाना पड़ता है। हाँ, बाकी के तार कौन सी भी ले लगाए तो ऐसा बजते नहीं। बचता नहीं। खाली तुम खरच बजाओ तो जोड़ पंचम ऑटोमेटिक आवाज़ देने वाला, खाली एक खरच के तार पर। तो ये उसका विज्ञान। हाँ। हाँ। अब ये जोड़ी के जो तानपुरे बनाते हैं, मतलब जोड़ी के तंबूरे बोलते हैं ना, इसका क्या राज है? इसका राज बोलो तो हमें जब तुम्हें खरीदी को जाते हैं, यानी खरीदी करने जंगल में जाते हैं, कद्दू, तो कद्दू खरीदी गए को तो व्यापार सब ठहरने का। एक बेल में एक साइज क्या और एक मेजरमेंट जो निकलते कद्दू, उसे जूड़ी करके अलग रख। 21 बेल के और एक साइज। नहीं तो एक बेल, यो बेल का एक कद्दू, वो बेल का एक कद्दू ले, बढ़ने में अलग अलग बचता है। तो 21 माह के बच्चे रह। हाँ। अभी जो अभी क्या हो गया, सितार तंबूरे के हमें देख रहे हैं, क्योंकि मेरा भी बचपना हुआ, मैं भी बहुत सारे तंबूरे देखे, सब हुआ। उस जमाने में और इस जमाने में कीमतों में बहुत फर्क आ गया है। कीमत में काम वो है क्या ये कीमत में बोल के, क्योंकि उस कम कीमत में जो तंबूरे मिलते थे वो भारी काम, बोले भारी काम। वो ज़माने में क्या था, हमारे पिताजी को 8 बच्चे रहते थे, तो उनको हफ्ते खर्चों पैसे कितने देने के चाचा? 1.5 रुपया। 1.5 रुपये में चावल, जवारी, मस्का सब खरीदी करके हफ्ते का पूरा बाजार लाने। अभी वो रहा है क्या? अब उस जमाने में, तुम्हारे ज़माने में जो काम होता था, या काम की लगन थी कि अच्छा काम करना,
खास तौर पे मेरे ख्याल से पैसे को ज़्यादा नहीं देखते थे, उस नहीं। काम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था। तो उस तरह के कारीगर अभी है क्या तुम्हारी फैमिली में? नहीं। फिर अभी इसके आगे का भविष्य क्या? हमारे जो कारीगर जो है, हमारे घराने के जो लोग हैं उतने ही काम करते हैं। बाकी के 50 भर लोग हैं ऐसा काम नहीं करते। हाँ, वो पूछ रहा था। मेरे ख्याल से आकाशवाणी में भी धारवाड़ की तुम्हारा चीज गुरुराव देशपांडे थे ना, उन्होंने हमको ऑर्डर दी थी आकाशवाणी की, तंबोरे, सितार। ये कौन से साल की बात रहेगी? 49। ओह 49, 1949 आकाशवाणी स्टार्ट आता कब? मतलब आकाशवाणी उसी वक्त चालू हुई थी? हाँ, चालू स्टार्टिंग को। तो धारवाड़ आकाशवाणी का एक हिस्सा हो। फिर यहाँ अपने ये यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जो है, बाद में कॉलेज का हुआ। हाँ, कॉलेज का हुआ को तो कैसा, धारवाड़ में हमारे CID सुपरिटेंडेंट रहते, उन्होंने वहाँ ऑफिस आता उनका, और करीम का खासा जब उन्होंने जोर लगा के कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट रखने का ये करे। यानी करीम खान साहब मतलब इनो रहमत खान साहब के बेटे, बेटी वाले खान के बाप। बाप। तो उन लोग सितार बजाते थे, तो उन्हें पर रोज बैठक रहने की, तो उन्हें बोले खर्चा ऐसा कॉलेज में चालू करने लगा था कॉलेज। तो उन्हें ऊपर समझा को कर को कॉलेज में सितार का पहला आइटम रखे। पहले ऑर्डर नाथ साहब ने हमको दी, 6 सितारा कॉलेज में देखो क्या। अच्छा चाचा, ये अब तुम्हारे जवानी में, तुम्हारे इसमें तुम्हें बहुत घूमे करे, पूरे हिंदुस्तान भर को घूमे, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर देश को भी गए, बहुत लोग लेके गए। ऐसी कौन सी भी एक हादसा या घटना तुम्हें याद रहेंगी जब तुम्हें कुछ खास याद, कौन सी भी किसी भी कलाकार के साथ में? खास कलाकार करो बोले तो रहमत का खासा पास ज़्यादा, रहमत खान साहब के पास। और बाद में करीम का खासा पास चालू हुआ। तो करीम का खासा क्या करे, जो भी काम रहेगा तो मेरे को बोला क्यों करने का, बाकी कोई नहीं। घराने में होता नहीं, तुम्हारे शागिर्द बाहर भी है? बाहर भी है। बाहर है। अच्छा, ये दरगाह अब्दुल करीम खान साहब का जिक्र आया बीच में, तो अब्दुल करीम खान साहब तो बाकी पूरा टाइम मिरज में रहे, उन्होंने वहीं से जाना जाना था उनका। तो उनके गुजरने तक भी तुम्हें वहाँ थे ना, हरीम खान साहब का? तो ये इमली के झाड़ का एक किस्सा आता है बीच में, हमेशा सुनते रहते हैं दरगाह में। वो इमली का जो झाड़ है, पहले वहाँ क्या था, एक आदमी ऐसा था जिन्नत करके, जादू मंतर करना वाला वो जगह में, और इमली का झाड़ ऐसा था, वहाँ उन्हें घर बनाया था। वो घर पास कौन जाते नहीं थे, वो घर पास गए वो मारने का। तो जिस टाइम उनको हमारे ख्वाजा समना मेरा आए, तो उनके साथ कुत्ता एक आता पालेगा। तो खासबा में बैठे, पहले खासबा में मदार है उनकी बैठक की। तो वहाँ से कुत्ते ने जो लाया खींच के, वो देवल के सामने लागो बैठा, वो घर के सामने जादूगर। उन्हें जो आया, उन्हें अभी 4-5 किलोमीटर लंबे है, यहाँ उसकी छो पड़ती थी। तो वो उसको मारे, खलास करे, बाद में वो जगह में साफ करे, और वो इमली का झाड़ अभी तक वो जैसे वैसा 400 बरस का है। 400 बरस। हाँ, वो झाड़ तलर
दरगाह का संदल का प्रोग्राम वहाँ होता है। तो ये दरगाह में जो अभी, क्योंकि आम तौर पे हम लोग देखते हैं दरगाहों पर क्लासिकल संगीत का काफ़ी ज़्यादा नहीं है, सिवाय मीरज में सारे हिंदुस्तान में वो एक ही जगह है एक ही, जहाँ पर क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होता है, खाली मीरज, मीरज में। बाकी नहीं तो- किधर नहीं नहीं। तो- कव्वाली बिवाली का प्रोग्राम मीरज में होता है नहीं हाँ, क्योंकि बाकी जो दरगाहों पर देखते हैं तो वहाँ पर खवाली होती है, है, सूफियाना होता है। वैसा मीरज में नहीं। नहीं, मीरज में क्लासिकल का। इसकी क्या? वजह क्या हो सकती है? अब्दुल करीम खान साहब के वहाँ रहने से? अब्दुल करीम खान साहब की वजह से। खान साहब के जो जगह में, रियाज की जगह में जो सांप आता था बोले, वो उसका कभी तुमने देखना हुआ क्या? 2 टाइम देखा हूँ, खान साहब आस्ते पैकी देखा हूँ, तभी भी आके बैठता था। आगे वो बैठेंगे, खान साहब इधर रियाज करते बैठे, और बाजू में हम बैठे, तो तुमने भी उसका दीदार हुआ है? और उसका दीदार जिस टाइम होगा वो टाइम में फायदा बहुत धंधा अभी भी आप करते हैं काम? चालू है, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ। काम बंद नहीं, काम बंद कर, मैं काम बंद कर रहा ये दुखन लगता है। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा तुम्हारा, इतनी देर बात करें और बहुत सारी चीज़ें समझाए दिए, और उसके लिए बहुत बहुत हमें सब लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि और आप अच्छे से तंदुरुस्त से और बहुत साल तक हमारे साथ में रहो, ये दुआ करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। पहले से तो तुम और हम एक साथ में रहे।